क्लास में से। आपको आवाज आ रही है या फिर सी आवाज? मैम मेरी बहुत ज्यादा आवाज? आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, बस मिनट। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम। चले अब मैं जो है ना, अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने। प्रोसेस पैटर्न्स क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा? सीआर यस मैम। का मतलब आवाज। अली रजा कौन है? अभी मैं कह रही हूँ जी अनम्यूट करें। अली रजा 2020 AG जी 636। मैम। आर यू देयर? मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और कट के आ रही है। अब ठीक आ रही है? ये बहुत अच्छा जी बहाना मैम। है ना, वैसे आवाज जो है ना कट रही है। मुझे जरा बताएं प्रोसेस पैटर्न्स क्या होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा? क्या मैम? प्रोसेस पैटर्न्स। मैम अभी मैंने वो लेक्चर आपका सुना था, लेकिन अभी मैंने ना दोबारा से नोट नहीं किया। अभी याद नहीं है मैम। थोड़ा सा एमी एमी इनफॉर्मल सा बता दो, मैंने कब का याद करें आप। मैम अभी कोई आइडिया नहीं हमारा है। आज के लेक्चर से रिलेटेड है ना, तो मैंने कहा था इसलिए पढ़ के आइएगा। Anyone of you, anyone else? Process patterns क्या होते हैं? What are process patterns? Yes, Vikas Munir. मैं भी एक टेम्पलेट्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमें इनर डिटेल्स ऑफ स्लाइड्स होते हैं। I cannot hear you. Please speak loudly. मैम टेम्पलेट्स लाइक होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आते हैं, इनर डिटेल्स ऑफ स्लाइड्स। अच्छा बस रहने दे, मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। In previous lecture we discussed about the
process framework, and we learned Recording that in how progress. we can divide our process into multiple activities and action and tasks, और किस तरह से process adopted from one project is different from process adopted to another project. And we also discussed how you can define your own pattern for your software, process pattern. Okay? And we discussed that process patterns are proven solutions, and you can also define your own process pattern. We also discussed that how software engineering team or software engineers follow the framework activities practically. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस मॉडल्स. अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया था वो जेनेरिक था. अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? ठीक है, देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेस मॉडल्स दैट आर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. यू कैन चूज एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू the type of your project and according to the nature of your project. You can select any process model according to the type and size, complexity, and the nature of the project. So these process models are called traditional process model. इनको traditional process model भी कहा जाता है. There are two approaches in software engineering. One is called traditional approach and one is called agile approach. For the development of the software, there are two approaches जो follow की जाती है. One is called traditional approach and the other one is called agile approach. In this chapter, we will discuss the traditional process model, and in next chapter we will discuss the agile process model. ठीक है, दो approaches follow की जा रही है software engineering में processes से related. एक को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, एंड वन इज कॉल्ड अजाइल अप्रोच दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट चैप्टर. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज प्रोसेस. ओके, प्रोसेस क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड प्रोसेस. प्रोसेस प्रोवाइड अस द प्रेडिक्टेबल स्टेप्स. वी ऑलरेडी लर्न दिस. ये प्रोसेस जो है वो हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स बताता है एंड दैट स्टेप्स आर प्रेडिक्टेबल. ओके, another way we can say that process provide us two things. One is the number of activities that we need to follow while we are developing the software and the sequence of the activities and their relationship. तो ये दो चीजें हमें process से पता चलती हैं कि what are the activities that we need to follow and what are the sequence of that activities, and process हमें ये दो चीजें provide करता है. The goal of following a process is process provide a standardization. And what do you mean by standardization? While we follow a standard, it means that every time we follow a standard, we will get the same result. Just like जैसे आप कहते हैं कि standards क्या होते हैं जो all over the world same way में follow किए जाते हैं, और every time उसको कोई भी follow करता है तो वो same result achieve करता है. That are called standards. Like unit is a standard. जैसे weight है, weight का unit जो है वो all over the world same. You cannot measure the weight in centimeters or meters. You will always measure the weight in kg or kilograms or grams or pounds. आप इसमें weight measure करो. Just like unit is a standard. तो standard का क्या मतलब होता है कि आप every time उसको जो है ना same way में use करो. हर एक को उसको सेम वे में यूज करना. The process provide us the standardization. It means that everyone who follow that process will get the same result. Okay? By standardization means that if anyone follow the process, he will get the same result. This is called standardization. So there are a variety of process models that provide the standardization during software development, and every software engineer, while follow that process model, he will get the same result. So that's why process model are available कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर ultimately goal of software is to provide the standardization and to provide the predictability. And what is mean by predictability? हम ये already learn कर चुके हैं कि predictability क्या है. Predictability is like if we are following a step
हमें पहले से पता होगा कि इससे अगला स्टेप क्या होगा. And ultimately process facilitate us so that we can manage our budget, we can manage the schedule of the software. So this is the goal of following a process, that every time we follow a process we want to get the same result, and we want to know in advance that what step we will need to follow in next, and we have to maintain the product quality and budget as well. So these are the reasons. That's why there are a variety of software process models that are available in software engineering, and you can choose any of them according to the type, nature, and complexity of your software project. Why there is the need of models? Software models की जरूरत software engineering में क्यों arise हुई? The need for software models arises due to the software crisis. What type of crisis इसका सामना करना पड़ रहा था? Schedule time and cost exceeded. ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जिसका सामना करना पड़ रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओवर बजट एंड ओवर स्केड्यूल्ड हो रहे हैं. ओवर स्केड्यूलिंग मींस कि आपको जो टाइम पीरियड कस्टमर की तरफ से एलोकेट हुआ है, विद इन दैट टाइम पीरियड आप अपने काम को कवर नहीं कर पा रहे हैं. आप पीछे रह गए हैं, आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ. So over budgeting and over scheduling is the main reason to introduce the software process models, and user expectations not met. Okay, user expectations क्या है कि whatever the functionalities and functions customer explained to the software engineers वो fulfill नहीं कर पाया. Okay? और क्वालिटी जो है वो पुअर क्वालिटी. अब क्वालिटी की कोई पेट डेफिनेशन है, इट इज नॉट एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी की डेफिनेशन कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकती है. एक प्रोडक्ट अगर मेरे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी क्वालिटी प्रोडक्ट हो. तो एवरी प्रोडक्ट दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स यूजर इज कॉल्ड अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और जब आप वो फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की जरूरत है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इट मींस आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कस्टमर के लिए पुअर है, आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे. So these are the reasons that create the crisis in software industry, and software engineers introduce process models so that they can standardize the development process and to maintain the quality of the software process, so that they can complete their project within time, within budget. So these are the reasons that process models are introduced. There can be two types of views of a process. A process can be a black box and process can be white box. इसका क्या मतलब है? प्रोसेस, एक प्रोसेस जो है वो ब्लैक बॉक्स तरीके से भी आप उसको व्यू कर सकते हो, और एक उसका व्हाइट बॉक्स व्यू भी हो सकता है. अगर हम प्रोसेस को एज अ ब्लैक बॉक्स देखते हैं तो दिस पिक्चर प्रेजेंट द प्रोसेस व्यू एज अ ब्लैक बॉक्स. इसका क्या मतलब है? Initially, when you start your project, you get the requirements from your customer. Those requirements are most of the time uncertain, incomplete requirements in the beginning. Starting में बहुत rarely ऐसा होता है कि आपके पास complete set of requirements है. Most of the time जो requirements आपके पास आती हैं वो incomplete होती हैं, उसमें कोई ना कोई deficiency होती है, वो uncertain होती हैं. They can frequently change. There is a chance, इसको हम क्रीपी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, जिनके फ्रीक्वेंटली चेंज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स मींस कि आप स्टार्टिंग पे रिक्वायरमेंट लेते हो, दैट कैन बी इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स. आप उसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो एंड यू हाइड एवरीथिंग फ्रॉम योर कस्टमर. आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ये देखिए ब्लैक है, यू कैन नॉट व्यू दैट के डेवलपमेंट टीम क्या काम उसके ऊपर कर रही है जो रिक्वायरमेंट कस्टमर से. But at the end, you cannot assure the quality of your product if you hide everything from your customer. So this is the black box view of the process. कि आप स्टार्टिंग में कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हो और एंड पे कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हो, और दरमियान में आप क्या काम कर रहे हो आप उसको हिडन रख रहे हो कस्टमर से. एंड दिस इज कॉल्ड प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स. The next view is process as a white box. What do you mean by white box? Means you create the transparency of your process. आप प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, आप उसको हिडन नहीं रख रहे हो. You frequently involved your
user or customer to get the feedback. दिस इज द व्हाइट बॉक्स व्यू ऑफ योर प्रोसेस कि आप फ्रीक्वेंटली, क्योंकि स्टार्टिंग में आप प्रोसेस जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, that can be uncertain, that can be changed frequently, that can be incomplete. So while you start your work, you need to get feedback frequently from your customer. तो वो आपको इंटरवल्स रखने की जरूरत है ताकि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करवा सकें. To assure the quality of your product, you have to create your process transparent to your user so that you can get frequently feedback from your customer to assure the quality of your end product. यहाँ पे इस पिक्चर से देख सकते हैं, आपने इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स यूजर से ली है, आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया है. आफ्टर सम टाइम पीरियड जब आप एक कुछ वर्क प्रोडक्ट्स बना लेंगे, यू विल गेट फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर. कस्टमर विल मेक श्योर दैट आपने जो काम किया वो ठीक किया है, यहाँ पे कोई मिस्टेक्स हैं वो आपको बताएगा. देन यू विल वर्क अगेन एंड देन अगेन गेट फीडबैक. तो इससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो ज्यादा अश्योर करवाई जा सकती है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं. So there can be two views of a process. Either you can adopt a process as a black box, or you can adopt a process as a white box. It is your own choice. It depends on your project requirement. अगर आपको clear requirements है तो you can choose as process as a black box. अगर आपका requirement clear नहीं है तो you can choose your process as a white box. So this is your own choice. Okay. Very first process model is waterfall model. This model is also called linear sequential model. This process model is also called linear sequential model because we have to follow each framework activity sequentially. That's why it is also called linear sequential model. You can see that ये वही 5 framework activities हैं जो हमने previous chapter में as a generic activity discuss की थी. Communication, planning, modeling, construction and deployment. इसकी फर्दर डिवीजन जो है वो फिक्स नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले की थी. देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिवाइड द ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी, दैट हाउ मेनी एक्टिविटी सब एक्टिविटी यू विल नीड इन एनी फ्रेमवर्क एक्टिविटी. देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको जस्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करना है. जैसे just for example यहाँ पे शो किया हुआ है, the communication is subdivided into project initiation and requirement gathering. Planning is subdivided into estimating, scheduling and tracking. Modeling is subdivided into analysis and design. And construction is divided into code and test. And deployment is divided into delivery and support. But there is not any limit of this division. You can divide your framework activity. Now even you can divide these 5 framework activities into more than 5 framework. आप इन्हीं 5 को आप 7 में भी डिवाइड कर सकते हो. जरूरी नहीं कि आपके प्रोसेस मॉडल की एक्टिविटीज जो है वो 5 ही रहेंगी, आप उसको और छोटी एक्टिविटीज में भी डिवाइड कर सकते हो. इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर नीड. फर्क क्या है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, प्रोसेस हमें क्या बताता है, एक तो कि किन एक्टिविटीज को हमने फॉलो करना है, दूसरा उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या होने वाला है. नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटी जो हमने फॉलो करनी है. तो इन वाटरफॉल मॉडल दीज activities are followed sequentially. अब sequentially से क्या मतलब है? Sequential का मतलब ये है कि each phase must be completed fully before the next phase can begin. ये मतलब होता है sequential का. जैसे if you start communication, it means you will have to collect the complete project requirement before starting the planning phase of your development process. Sequentially होने का क्या मतलब है कि अगर आप एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे तो आप अगली फ्रेमवर्क एक्टिविटी स्टार्ट कर सकोगे. ये मतलब होता है sequential का. और while you are following waterfall model, at the end of each phase you will have to perform formal technical reviews just to make sure the quality of your work products. जब आप कोई भी sequential approach फॉलो करते हैं ना, तो किसी न किसी तरह तो आपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी श्योर करानी है ना. आप एक काम कर रहे हो जस्ट टू अवॉइड दैट कि एक फेज के क्रिएट हुए एरर्स जो है वो अगले फेज में ट्रांसफर ना हो, इसको आपने अवॉइड करना है. इसलिए एट द एंड ऑफ ईच फेज आपको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज फॉलो करनी है सो दैट यू कैन अवॉइड द पेनिट्रेशन ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट फेज. इसको आपने अवॉइड करना है. तो इसके लिए फिर क्या है कि वी नीड टू परफॉर्म
technical reviews or reviews at the end of each phase. Okay. Because we are following a sequential approach, first we will collect all project requirement, then we will plan that requirement, then we will create the design of the software, whole project, and then we will start the coding portion. And after creating the coding portion, we can start testing. But in waterfall model, the testing start only after the development is complete. Or because we are following the sequential, we will have to complete each framework activity for starting the next activity, so there is no overlap between waterfall model activities. Recording stopped. Class? कोई क्वेश्चन, कोई बात जो समझ में ना आई हो? Any question? Okay. Wait a minute, class. मुझे आज ना इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है, क्लास में थोड़ी मुश्किल हो रही है, किसी को कंप्लेन वगैरह नहीं है सब? ओके, कंटिन्यू करते हैं. Just a minute. Recording in progress. There are some problems that we can associate with the any linear sequential model या हम waterfall model के साथ कुछ ऐसी problems हैं जो हम associate कर सकते हैं. Okay? What type of problem can be associated with linear sequential model? That कहते हैं कि real project rarely follow this sequence. मतलब practically अगर हम काम को करना शुरू करें तो it is very difficult कि हम जो है वो fully sequential होकर काम करें. कहीं ना कभी हमें थोड़ी सी आइट्रेशन इन्वॉल्व करनी पड़ती है. हमें जो है वो टू अकोमोडेट द थिंग्स वी हैव टू आइट्रेट द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमने प्लानिंग स्टार्ट की है, व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द प्लान फॉर आवर प्रोजेक्ट, हमें कुछ रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुई तो वी कैन अगेन मूव बैक टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. बट it can be only possible indirectly in waterfall. So while you are making the changes indirectly, or you are accommodating the iteration indirectly, so this can create the confusion for the project team. और बजाय इसके कि आपका काम आसान हो, काम आपका खराब भी हो सकता है. And it is difficult for the customer to state all the requirement explicitly at the very beginning of the project as well. जैसे मतलब really ऐसा possible है कि एक कस्टमर जो है वो आपको प्रोजेक्ट अभी उसकी वो रिक्वायर कर रहा है और इनिशियली वो आपको सारे के सारे फीचर्स बता दे, सारी की सारी फंक्शनैलिटी बता दे. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो सम आइटेरेशन जो है नेचुरली बड़ा जरूरी है. तो ये एक ड्रॉबैक है वाटरफॉल मॉडल का कि हमें इनिशियली सारी की सारी रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है और कस्टमर मस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि हमने सीक्वेंशली प्रोजेक्ट को बनाना है. पहले हम सारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, फिर हम उसको प्लान करेंगे, फिर हम उसका डिजाइन बनाएंगे, मतलब हम डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनेगा, ऐसे डिजाइन मॉडल्स बनेंगे, देन वी विल क्रिएट दी कोडिंग फॉर ईच कंपोनेंट, और then we will perform testing, और after that हम testing perform करने के बाद सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करेंगे. तो customer must have enough time. तो ये कुछ drawbacks हैं that we associate with the linear sequential approach that the development team have to face while they are following the linear sequential model. So when we need to follow the linear sequential approach, you can apply it when there are fixed requirements. ये इसका एक कह लें कि आप कह लें कि when we can apply the waterfall model, we can apply the waterfall model for the projects that are small in size or that can be very large in size.
Small in size and large in size का क्या मतलब है? For example, you want to create a new component for already developed software. एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है बट आपने उसका एक नया कंपोनेंट बनाना है. इट मींस ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो आपको उसकी इनफ इंफॉर्मेशन होगी, आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर होगी. So you can develop that component by following waterfall model because requirements are already clear. And there are less chances of changing the requirement. So when the requirements are fixed, when the requirements are less creepy, then you can apply the waterfall model. This is the आप कह सकते हैं कि situation when you can choose the waterfall model for your project. When the project size is very small or when the project size is very large. Very large मतलब just like the project of the NASA के प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती हैं, उनके लेस चांसेस होते हैं उनके चेंज होने के, तो वो आफ्टर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. सो दैट्स व्हाई दे कैन स्टार्ट देयर वर्क सीक्वेंशियली, तो वो काम कर सकते हैं. Recording stopped. Class? आवाज आ रही है मेरी? तो फिर सारे सोए हुए हैं क्या? हाँ या ना में नहीं बोलते आप लोग, तो इतने निकम्मे हो. मतलब एक ही सेक्शन है आपका. आप सीएस को जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया है. सेक्शन ए जो है वो आगे से रिस्पॉन्स देता है, वो काम भी करके आता है, वो क्लास में क्वेश्चन भी करता है. सेक्शन बी जो है वो क्लास में रिस्पॉन्स भी नहीं करता, वो क्वेश्चन भी नहीं करता, वो क्वेश्चन के आंसर भी नहीं करता. मतलब सेम बैच है आपका, 2 सेक्शन में डिवाइडेड हो बट इंटायरली डिफरेंट हो दोनों एक दूसरे से. ओके, हम कंटिन्यू करते हैं. मुझे से क्या, अच्छा मैं रीजॉइन करें काइंडली मुझे, तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. नेक्स्ट हमारे पास है जी वी मॉडल. Here V stands Recording in progress. for verification and validation. Okay. V stands for verification and validation. The V model is the extension of waterfall model. अभी जो हमने waterfall model डिस्कस किया जो कि एक linear sequential model है, V model is the extension of waterfall model. And we, according to V model, if we rely on the testing alone, defects created first and detected last. मतलब अगर हम कहते हैं कि sequentially हम काम करें तो कितनी देर बाद हमारा टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. मतलब हम रिव्यूज तो परफॉर्म कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच फेज, वी आर परफॉर्मिंग द रिव्यूज एट द एंड ऑफ ईच फेज, बट when we complete the code of our project, then we start this testing. Testing start very late while you are following a linear sequential. तो वी मॉडल जो है वो इसकी इस ड्रॉबैक को थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश करता है. कैसे कम करने की कोशिश करता है कि वी मॉडल दी verification and validation activities are involved in each phase of development life cycle. Or you can say that for each framework activity, there are verification and validation activities that are involved in V model so that the drawback of linear sequential approach can be minimized. तो इसके लिए जो है वो verification and validation activity for each framework activity जो है वो यहाँ पे involved. You can see this diagram on the left side of this V shape. These are the framework activities. इनके name change है. You can change the name of your framework activity according to your need. You can subdivide them according to your need. ये बात मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि there is not any hard and fast rule that you will have to follow your development process only in 5 generic activities. आप उसको subdivide कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो the communication framework activity is divided into 2 activities. One is user requirement, the second one is the user requirement specification, and the next one is high level design, and the next one is detailed design, and then we will start the coding. तो ये उसने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे डिवाइड किया. आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे communication planning, construction and requirement. It is your own choice. So on the left side of this V shape, these are the framework activities, and for each framework activity there is a test plan on the right side. जो यहाँ पे explain किया है, these are the test plan for each framework activities that we will have to prepare
side by side with each framework. While you are collecting the user requirement, at the same time, you will prepare the acceptance testing plan for the user requirement. That means that acceptance testing means that after completing your project, you will test the user requirements according to टेस्ट प्लान जो आपने यूजर रिक्वायरमेंट लेवल पर क्रिएट, टेस्ट भी एंड में होंगे, बट इसको आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग आपने स्टार्टिंग में कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? while you will create the accepting testing plan, तो जब आप उसको प्लान में कन्वर्ट करोगे, you will create the test cases, the problem or deficiencies related to the user requirements can be easily identified, easily detected। आप उसको कर सकते हो, आप उसको डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हो जब आप उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्लान बनाओ। After creating the requirement specification document, you will create the system testing plan. After designing the high level design of your software, you will create the integration testing plan. And after the detailed design, you will create the unit testing plan. And then you will start coding your project. हम follow sequential ही कर रहे हैं. We are following these activities sequentially, but we are creating the testing plan with each framework activity. एक एक्टिविटी हम कंप्लीट कर रहे हैं, बट उसके साथ हमने उसको टेस्ट कैसे करना है, हम उसका टेस्टिंग प्लान साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द कोडिंग, यू विल स्टार्ट टेस्टिंग ऑफ योर कोड फ्रॉम द यूनिट लेवल. फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग जो प्लान आपने पहले की है बट एग्जीक्यूट यहाँ पे होगी. देन आफ्टर यूनिट टेस्टिंग यू विल परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो प्लान आपने पहले की है बट आप उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करें. एंड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग यू विल स्टार्ट सिस्टम टेस्टिंग, जो आपने प्लान की थी एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपने प्लान की थी, बट यू विल टेस्ट द सिस्टम हियर. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग the system testing, you will test your system according to the user specified requirement, जो आपने user requirement collect करते हुए plan किया था, but आप यहाँ पे उसको test करें. So this is the main idea behind the V model, that for each framework activity we will perform verification and validation activity so that we can minimize the drawback of the linear sequential approach. तो यही पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं. लाइक वी मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वी मॉडल वाटरफॉल मॉडल की एक्सटेंशन है. एंड वी मॉडल प्रोवाइड अस the variety of verification and validation activity. Means for each framework activity there is a verification and validation activity that help us to minimize the number of errors, और जो कह लें कि ड्रॉबैक्स हैं ऑफ लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच, इसको मिनिमाइज करने में हमें हेल्प होता है. और on the left side of the V models there are conventional waterfall model, on the right side there are verification and validation model. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है. और मेजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो कब होगी? जब आपकी सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी. While you are performing system testing, you will execute your system in the real environment, including the hardware and software. उसमें आप अपने सिस्टम को टेस्ट करोगे और फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे. So this is the difference between waterfall model approach and the V model approach. And when we use V model for waterfall model, मैंने आपको बताया था कि waterfall model can be adopted for very small or very large, but V model can be adopted for small to medium size of the project. और एक इसकी थोड़ी सी आप कह लें कि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि V शेप मॉडल जो है वो आप तब अडॉप्ट कर सकते हो when there are ample technical resources. Means आपको verification and validation activities perform करनी है. It means you must have experts in your development team so that they can create the verification and validation planning side by side. And your customer confidence is also required so that you can create your project and meet the customer expectations, because there is no prototype you are preparing during your project and the completion of the project, because this is also a linear sequential approach. और आपको एंड के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर कस्टमर को हैंड ओवर करना है, तो you need the confidence of your customer as well in V-shaped model.
Next is there are some other drawbacks that we can associate with the linear sequential approach. जैसे कुछ तो आपने हमने डिस्कस किए हैं ना कि हम रेयरली ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इतना सीक्वेंशियल फॉलो करना. एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है वो इतना लिनियरली जो है वो फॉलो नहीं करते. अदर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? While we are following a linear sequential approach, there are blocking states. जो डेवलपमेंट टीम मेंबर्स हैं उनको ब्लॉकिंग स्टेट्स का सामना करना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकिंग स्टेट्स? ब्लॉकिंग स्टेट्स क्या है? व्हेन जो आपका एक ग्रुप है टीम का वो काम परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो वेट कर रहा है. मींस व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट यू डिवाइड योर वर्क अमंग द टीम मेंबर्स. मतलब कुछ लोगों की ड्यूटी है दे विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन, देन अदर वन विल स्टार्ट द प्लानिंग. बट जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं पहले वो करेंगे तो फिर प्लानिंग होगी ना. तो जिनकी ड्यूटी आपने लगाई है कि दे विल कलेक्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और विल क्रिएट द एसआरएस डॉक्यूमेंट, तो जब एसआरएस डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा देन यू कैन स्टार्ट द प्लानिंग. तो जिन डेवलपमेंट टीम मेंबर्स की ड्यूटी है ऑन प्लानिंग दे विल हैव टू वेट. So this is called the blocking states when one team member is waiting for the work of the other team. एक कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा है कि एक बंदा अपना काम कंप्लीट करेगा तो अगला काम बंदा अपना काम स्टार्ट करेगा. तो ये ड्रॉबैक एसोसिएटेड है लिनियर सीक्वेंशियल अप्रोच के साथ. और आप कह सकते हैं कि टाइम जो आप वेटिंग में स्पेंड कर रहे हैं यू कैन यूज दैट टाइम इन मोर प्रोडक्टिव वर्क. So the blocking states tend to be more prevalent at the beginning and end of the linear sequential. ज्यादातर जो ब्लॉकिंग स्टेट का सामना करना पड़ता है वो जब आप रिक्वायरमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तब, और जब आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं. और एक और ड्रॉबैक जो हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं कि जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती है. आए दिन हमारे पास हम लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं ना. आए दिन हमारी हार्डवेयर चेंजेस हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ रहे हैं. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है वो नई तरह की आ रही हैं. तो इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर जो है वो इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज. सो हम प्रैक्टिकली इतना लीनियर काम को लेके नहीं चल सकते. तो हाँ, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स है, लेस चांसेस ऑफ चेंज है, वहां पर हम लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको, अगर आप रिकॉल करें तो इन वेरी फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द लेमन 3 कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एस प्रोग्राम, पी प्रोग्राम एंड ई प्रोग्राम. लेमन सेड दैट देयर आर सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट हैव फिक्स सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. उनकी रिक्वायरमेंट फिक्स है. जैसे कि आपको चेस बनानी है, गेम बनानी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स है. उसमें चेंजिंग वो लेस क्रिएटिव है, उनके चेंज होने के चांसेस कम है. तो दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग द सीक्वेंशियल अप्रोच, बाय फॉलोइंग Recording stopped. D class, any question? No, ma'am. सारा समझ आ गया ना? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी. ओके, एनफ फॉर टुडे. मैंने इस सेक्शन को भी यहाँ तक पढ़ाया है. तो अभी यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स और यू कैन लीव द क्लास. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर. तो मैम क्या हम ये ऑल 39 चैप्टर्स इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे या हमें ऐसा पॉसिबल है? वैसे अहमद बताया मुझे जरा, इज दैट पॉसिबल? कभी आपने पहले ऐसे पढ़ी बुक? नो मैम. एक बुक लगवाई जाती है ना, तो आप अब छोटी क्लास में तो नहीं ना कि एक बुक लगवाई है आपको तो आपको उसके पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर पढ़ाना है. छोटी क्लासेस में ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है. हम मल्टीपल बुक से भी हमने मल्टीपल बुक से पढ़ना है. अभी मैंने आपको एक बुक बताई है, जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे मैं आपको एक और बुक बताऊंगा. हमने कंटेंट्स कवर करने, वो कंटेंट्स जो कि आपके कोर्स के लिए डिफाइन किए गए हैं, डिपार्टमेंट में डिफाइन किए. तो वो कंटेंट्स जो है वो एक बुक से जितने कवर होंगे वो करेंगे, दूसरी बुक से जितने हमें करने होंगे. तो हमने चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करने, हमने कंटेंट्स कवर करने. ओके मैम. मैं इसलिए पूछ रहा था कि उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हमने सब कवर करने हैं या फिर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कुछ कंटेंट्स हैं जैसे मेन हमने एक्चुअली ना ये 5 जेनेरिक एक्टिविटीज जो पढ़ी है ना, हमने इन्हीं को थोड़ा थोड़ा टच करना है. जैसे अभी हमने प्रोसेस मॉडल स्टार्ट किए है ना,
अब हमने हर प्रोसेस मॉडल की जो फेजेस हैं उनको एक एक दफा पढ़ना है। जैसे रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं वो पढ़ लेना है, सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसे बनाते हैं वो पढ़ लेना है, फिर हमने कोडिंग कैसे करनी है, कोडिंग के क्या रूल्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा सा उसको टच कर लेना है, टेस्टिंग के क्या रूल्स हैं थोड़ा सा टच कर लेना है। मतलब ये नहीं 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज का थोड़ा थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी से रिलेटेड 3-3 4-4 चैप्टर्स हैं, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना उसकी स्लाइड्स आपको, तो आपको ये इसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं हमने सारे कवर करने हैं, ऐसा नहीं है। जो कंटेंट्स हैं इस कोर्स के हमने बस उनको कवर करना है, और आपकी ये 5 जेनेरिक एक्टिविटीज ही आपके कंटेंट्स हैं, या कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम पढ़ सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना वो आप सेपरेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ लोगे, सेपरेट एससी वाले तो सेपरेट कोर्स पढ़ते हैं इसका, तो इसलिए सारे की सारी बुक नहीं हमने कवर करनी, कंटेंट्स कवर करवाऊंगी। तो चूज आप खुद करोगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चूज करोगे, और आपने जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे आपने उसके ऊपर अप्लाई करने, मतलब कोडिंग क्रिएट नहीं करनी होगी। आपने जैसे रिक्वायरमेंट लेनी है तो आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लिखोगे, आपको पता होना चाहिए फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को कैसे लिखना है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट को कैसे लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल में, आपको असाइनमेंट्स एलोकेट करूंगी, आपने वो करनी है। फिर जब हम एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल स्टार्ट करेंगे, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को करोगे, फिर मॉडल्स के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपको वो मॉडल्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है। पहले उसके कॉन्सेप्ट लॉजिक क्रिएट करोगे पेपर पे, फिर आपको वो टूल रिकमेंड करूंगी, उन टूल्स में आप उनको बनाओगे, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के जो टूल्स अवेलेबल हैं आप उन टूल्स में उसको बनाओगे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल वर्क आप साथ साथ करके देखो, ठीक हो गया? ओके मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स क्लास? Okay, you can leave your class. मैम हम प्रैक्टिकल जो वर्क है वो फिजिकल क्लासेस में जाके हाँ जी। करेंगे या फिर ऑनलाइन में? नहीं, थोड़ा सा ना, जैसे अभी मैं ये ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल कराऊं ना, उसके बाद मेरा इरादा ये है कि उसके बाद अजाइल अप्रोचेस आनी है, वो फिर प्रोसेस मॉडल्स हैं, तो थोड़े से ना बच्चे बोरिंग फील करना शुरू कर देते हैं, बोर होने लग जाते हैं कि एक ही तरह की ना सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स चल रहे हैं। तो फिर मैं क्या करती होती हूँ कि ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल पढ़ाने के बाद ना एनालिसिस मॉडल स्टार्ट करती हूँ। तो कुछ एनालिसिस मॉडल का प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, तब उसका मेन आइडिया ले लेंगे, आप उसको करके भी देखोगे, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दूंगी, आपको छोटे मोटे टास्क दूंगी उससे रिलेटेड करने के लिए। तो स्टार्ट हम कर देंगे बिफोर फिजिकल क्लासेस, बट एक्चुअली आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब वो रिवाइज हो जाएंगे ना जब आपकी फिजिकल क्लासेस में। तो अभी ये जब ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल हम पढ़ लेंगे ना, तो फिर मैं आपको एनालिसिस मॉडल स्टार्ट करवाऊंगी, फिर हम अजाइल अप्रोचेस करेंगे। मैम इसका मतलब कि हम ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा थ्योरी को कवर करेंगे? नहीं, कह तो रही हूँ स्टार्ट करा दूंगी इस चैप्टर के बाद। ओके मैम। कहा नहीं एनालिसिस मॉडल स्टार्ट करूंगी। ओके मैम। एनालिसिस मॉडल प्रैक्टिकल पोर्शन है, हाँ, तो इस चैप्टर के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दूंगी, काम हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ बेस बनना भी तो जरूरी है ना। जब आपको कंसेप्ट ही अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल में क्या करोगे? अभी तो आपकी बेस बन रही है, अभी 3 चैप्टर हमने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पढ़े कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या है, और सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं, मिथ्स कौन कौन सी है जिसको अवॉइड करना है, प्रोसेस को कैसे डिवाइड करना है, कौन कौन से प्रोसेस मॉडल हैं, ये तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जब ये पढ़ोगे तो उसको अप्लाई करोगे ना, उसके बाद कैसे आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते। ठीक होगी बात अहमद? ओके मैम। ओके, चलिए।